हेलो, मैं टॉम और ये जेरी है। हम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तुमने नहीं किया? कर लो भाई, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताती है ये टीचर। Waiting for the battle. He had wanted several times to join the army. Tales of great movements shook the land. There seemed to be much glory in them. He had read of marches, advances, battles, and he had wanted to see it all. But his mother had prevented him from going. She looked with little favor upon the quality of his war spirit. She gave him hundreds of reasons why he was more important on the farm than on the field of battle. At last, however, he had taken a firm position. The newspapers, the talk of the village, his own imaginings had excited him to an uncontrollable degree. They were, in truth, fighting finely down there. Almost every day the newspapers talked of victory. One night, as he lay in bed, the winds had carried to him the wild ringings of the church bell, announcing the news of a great battle. This had made him tremble in excitement. Later, he had gone down to his mother's room and said, "Ma, I'm going to join the army." "Henry, don't you be a fool." His mother had replied. She had covered her face with the blanket. There was no end to the matter for that night. Nevertheless, the next morning he had gone to a town nearby and had joined a regiment that was forming there. "Ma, I've joined," he said to her hesitatingly as she milked a cow in the evening. There was a short silence. "The Lord's will be done, Henry," she had finally replied, and had then continued to milk the cow. When he had stood in the doorway with his blue soldier's clothes on his back and with the light of excitement and expectancy in his eyes, he had seen 2 tears leaving their trails on his mother's tired face. Still, she had surprised him by saying nothing about his returning. He had privately been ready for a beautiful scene. He had prepared certain sentences which he thought could be used to produce great emotion. But she simply said, "You be careful, Henry, and take good care of yourself. Don't think you can beat the whole rebel army at the start, because you can't. You're just one little fellow among a lot of others, and you have to keep quiet and do what they tell you. She did not look up from the potatoes she was peeling. And always be careful when you choose your friends. There are lots of bad men in the army, Henry. Stay away from them, Henry. I don't want you ever to do anything, Henry, that you would be ashamed to tell me about. I don't know what else to tell you, Henry, except that you must never avoid your duty, child. If a time comes when you have to be killed or kill, Henry, don't think of anything except what's right. Don't forget your shirts, child, and try to keep warm and dry. Goodbye, Henry. Be careful, and be a good boy." Her speech was not quite what he had expected. He departed, feeling a kind of relief. Still, when he had looked back from the gate, he had seen his mother kneeling among the potatoes. Her brown face, upraised, was marked with tears, and her body was shaking. He had lowered his head and gone ahead, feeling suddenly ashamed of his purpose. बताओ कैसी लगी कहानी? क्या इंग्लिश में थी, समझ में नहीं आई? हिंदी में बताओ। अच्छा चलो ठीक है, हिंदी में। हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है वेटिंग फॉर द बैटल। बैटल के लिए उतावला लड़का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा जवान लड़का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि अगर बैटल होती थी, मैं उसमें जाता था तो मैं गर्व से उसकी बहुत बहुत कहानियाँ देखता था, पढ़ता था, लोगों को बताता था। उसको ऐसे लगता था कि जो बैटल के दरमियान, युद्ध के दरमियान जो मार्चेस होती है, एडवांसेस होती है, बैटल्स होता है, वॉर होती है, वो
बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी मम्मी जो थी ना, उसको बहुत सारे ढेर सारे कारण बताती थी कि उसने आर्मी में नहीं जाना चाहिए, उसने तो खेतों में काम करना चाहिए, किसान लोग जो काम करते हैं वो भी तो देश की सेवा ही होती है। ऐसे बताकर उसको हमेशा आर्मी में न जाने की सलाह देती थी। लेकिन जो जवान लड़का था उसको तो लगता था कि नहीं, मुझे तो आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, मैं तो शूरवीर हूँ। वो हमेशा अपने न्यूज़पेपर में रोज़ रोज़ किस्से कहानियाँ पढ़ता था, कुछ ना कुछ बातें आती थी जो उसे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। जब भी वो आर्मी लोगों का मतलब जो ड्रेस रहता है वो देखता था तो वो चौंक जाता था, वो बहुत अट्रैक्ट होता था उसकी तरफ। उसको पता था फाइटिंग इतनी ईजी नहीं है, न्यूज़पेपर में जैसे बताते हैं वो करना बहुत ईजी नहीं है। वो एक दिन अपने रात को अपने बेड पे सोया था, तभी उसको चर्च की बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसका मतलब होता है कि युद्ध होने वाला है और उसके लिए अब रेजिमेंट में बच्चों की, बॉयज़ की लड़ने के लिए ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी उसने थाम लिया कि मैं अब जाऊंगा और आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। वो माँ के पास गया और माँ को बताया कि वो आर्मी के लिए भर्ती होने के लिए जा रहा है। उसने पूछा नहीं, वो डायरेक्ट उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ। उसकी मम्मी ने उसको कुछ नहीं बोला और वो उस रात को वैसे ही सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह मॉर्निंग हुई तो उसके गांव के आजू बाजू का जो शहर था वहाँ पे चला गया। वहाँ पे उसने रेजिमेंट में अपनी पोजीशन ले ली थी और घर आने के बाद उसकी मम्मी को देखा, उसकी माँ दूध निकाल रही थी। इवनिंग का टाइम था और उसने माँ को बताया कि माँ मैं आर्मी में भर्ती हो गया हूँ। माँ कुछ नहीं बोली, साइलेंट थी थोड़ी देर के लिए और बाद में बोली भगवान की मर्जी भाई, अब कुछ नहीं, और अपना अपना काम फिर से करने लगी। बेटा था, उसने ड्रेस पहन लिया थोड़े दिन के बाद और ब्लू ड्रेस में, आर्मी के ड्रेस में उसका चेहरा बहुत ब्राइट था, उसकी आंखें बहुत ब्राइट थी और उसने देखा कि उसकी जो माँ है उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसकी माँ उसको देख भी नहीं रही थी, उसका चेहरा बहुत थका हारा सा लग रहा था। उसकी माँ ने उसको वापस कब आओगे, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं बोला और जो उसने प्राइवेटली डिसीजन लिया था उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। एक्चुअली ये बॉय ने बहुत सारा कुछ लाइंस लिख के रखे थे अपने बारे में कि वो कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा कि वो कहाँ कैसे लड़ने के लिए आर्मी में भर्ती होके जा रहा है। उसकी माँ ने उसको खाली इतना बोला कि बेटा जो भी काम करोगे वो केयरफुली करना और एक बात सुनो, आर्मी में बहुत अजीब सा ढंग के लोग मिलेंगे तो तुमको उनसे बच के रहना पड़ेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं आती है, आर्मी में अभी भर्ती हुए हो तो तुमको शांत रहना पड़ेगा और वो जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। वो लड़की की तरफ देख भी नहीं रही थी, पोटैटो को छिल रही थी और हमेशा उसको बार बार यही बोल रही थी कि आर्मी में जब अब तुम भर्ती हो ही गए हो तो वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो चूज़ करते समय केयरफुली चूज़ करना, गंदे भी लोग वहाँ पे हो सकते हैं, तो ऐसी वाली कोई भी गंदी बात मत करना कि जिसके लिए माँ को और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसको जो भी काम दिया गया है वो हॉनेस्टली उसको करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, ऐसे उसको उसने बोला। क्योंकि तुम अभी वहाँ पे जा रहे हो तो ऐसा मौका आएगा कि तुमको कोई मारेगा, नहीं तो तुमको किसी को मारना पड़ेगा। तो बिल्कुल मत सोचना क्या गलत है क्या सही है, जो सही है उसका साथ हमेशा देना। और तुमने जो देश के लिए जो वर्दी पहनी है आर्मी की, बेटा उसको देख के अपने बॉडी में हमेशा गर्मी पैदा कर लेना। गुड बाय एंड बी केयरफुल, गुड बच्चा बन के हमेशा रहना। उसका स्पीच ख़त्म हो गया, वो चुपचाप हो गई थी। लड़का बाहर निकला, वो हम अपने माँ की बोलने का जो ढंग था उसको समझ रहा था। पीछे मुड़ के जब देखा तो उसकी माँ पोटैटो छिल के छोड़ के घुटनों पे बैठ के जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा बेचारी का
आँखों में इतने सारे आंसू थे, उसकी बॉडी थरथरा रही थी, काँप रही थी, ब्राउन हो गया था उसका चेहरा। और एक बार इस लड़के को अपनी माँ के बारे में सोचकर बहुत गंदा लगा कि जो मैंने किया वो मम्मी को बिना पूछ के किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।